morning students. Myself Rajiv Verma is going to start the numericals of chapter number 3. Now our first question is the position of an object moving along x-axis is given by any position of the object is given, that is x is equal to a plus bt square, where a is 8.5, b is 2.5 meter per second square and t is measured in second. So what is its velocity at t is equal to 0 seconds and t is equal to 2 seconds? Means we have to calculate the velocity at t is equal to 0 and t is equal to 2 seconds, and what is the average velocity between t is equal to 2 to t is equal to 4 seconds. Means here we are going to obtain the velocity as the two time intervals and also the average velocity. Now what is given? Given is x is equal to a plus bt square. Now this is the position of the object. So that is why to calculate the velocity from this we have to differentiate it, differential with respect to t. Now v may be written as dx divided by dt, or it may be written as d by dt of a plus bt square. Now after differentiation, a is a constant, so differential of a is 0 and b remains same. The differential of t square is 2t by the relation d by dx of x raised to the power n is equal to nx raised to the power n minus 1. Okay, now we got the velocity 2bt. वेलोसिटी की वैल्यू आ गई हमारी 2bt. ओके, अब इसमें v have b is equal to 2.5 meter per second square. Therefore v is equal to 2 into 2.5 into t, तो it will be 5t. v की वैल्यू कितनी आ गई 5t. अब हमें क्या करना है, हमें t is equal to 0 पर कैलकुलेट करना है. तो at t is equal to 0 velocity is equal to 5 into 0 is equal to 0 मीटर पर सेकेंड. एक पार्ट कंप्लीट हुआ. अब आते हैं at t is equal to 2 seconds, v is equal to 5 multiplied by 2 is equal to 10 मीटर पर सेकेंड. is also covered. ओके, इसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे इसमें एवरेज वेलोसिटी. Now for average velocity, what we will do, we will calculate the displacement as this two time, because we have x is equal to a plus bt square. Now at t is equal to 2 seconds, x is equal to a plus b into 2 का square is equal to a plus 4b. ये हम मान लेते हैं this is suppose x1 and the time is suppose t1. दूसरा टाइम क्या दे रखा है t2, ये दे रखा है 4 सेकेंड. तो 4 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे तो x2 इक्वल टू हो जाएगा a प्लस बी इंटू 4 स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा a प्लस 16b. तो ये जो दो वैल्यूज हमने कैलकुलेट करी x2 और x1 की कैलकुलेट करी एट t1 एंड t2. नाउ द एवरेज वेलोसिटी is written as x2 minus x1 upon t2 minus t1. Now we have to put the values here. तो x2 की वैल्यू जो है वो है a plus 16b माइनस x1 की वैल्यू है a plus 4b, और यहाँ माइनस है तो ये क्या हो जाएगा माइनस के 4b डिवाइडेड बाई t2. द वैल्यू ऑफ t2 इज 4 माइनस t1 इज 2, तो ये कैंसिल आउट. 16 माइनस 4 इज 12b अपॉन 2, दिस इज 6b. अब b की जो वैल्यू है हमें दे रखी है इट इज 2.5, तो ये हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाई 2.5, इट इज 15.0 मीटर पर सेकेंड. तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया. अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज गिवन बाय, this time we are having the velocity 2t square plus 5. Okay, now we have to find the change in the velocity of the particle during the time interval between t1 is equal to 2 seconds to 4 seconds. यानी हमें क्या निकालना है, चेंज इन द वेलोसिटी.
तो हम क्या निकालेंगे, एट t1 इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स वेलोसिटी v1, यानी t इज इक्वल टू 2 सेकंड पर वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे। तो v1 इज इक्वल टू हो जाएगा 2 into 2 square plus 5, यानी we are putting a value of t2 in this expression। तो ये हो गया 4 to the 8 और plus 5, 8 plus 5 it is 13 मीटर पर सेकेंड। ओके, अब आप सिमिलरली एट t2 इज इक्वल टू, t2 कितना दिया है 4 सेकेंड, 4 सेकेंड्स, तो v2 आ जाएगा हमारा 2 into 4 square plus 5। ओके, तो इट विल बी 16 to the 32 plus 5 it is 37 मीटर पर सेकेंड। अब हमें फर्स्ट पार्ट में क्या करना है, कैलकुलेट द चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। तो चेंज, फर्स्ट पार्ट चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू v2 माइनस v1, और v2 की वैल्यू कितनी है 37 माइनस v1 की वैल्यू है 13, तो 7 माइनस 3 इज 4 and 3 minus 1 is 2, 24 मीटर पर सेकेंड। ये 24 वैल्यू आ गई। अब आते हैं सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट में हमसे पूछा गया है द एवरेज एक्सेलरेशन ड्यूरिंग द सेम इंटरवल ऑफ टाइम। तो एवरेज एक्सेलरेशन निकालने के लिए हम क्या करें, यानी कि हमें निकालना है एवरेज एक्सेलरेशन एट दिस, तो यानी ए एवरेज ये होगा v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1, यानी चेंज इन द वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इंटरवल। तो चेंज इन द वेलोसिटी हमने यहाँ पे निकाली है 24, और चेंज इन द टाइम इंटरवल यही कहा है कि इन द सेम टाइम इंटरवल, तो ये 2 से 4 यानी 4 माइनस 2 टाइम इंटरवल रहेगा 24 अपॉन 2 यानी कि 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज द एवरेज एक्सेलरेशन। अब इससे आगे एक और पार्ट इसमें बचता है, थर्ड पार्ट द इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो अगर हमको वेलोसिटी गिवन है और हम इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो हमें क्या करना होगा, वी हैव टू डिफरेंशिएट इट, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू टी। क्या करने के लिए, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने के लिए हमें इसे डिफरेंशिएट करना होगा। तो डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू dv डिवाइडेड बाय dt इज इक्वल टू d बाय dt ऑफ 2t स्क्वायर प्लस 5। ओके, अब इसे डिफरेंशिएट कर रहे हैं, 2 तो कांस्टेंट टर्म है, 2 रिमेन सेम, t स्क्वायर का जो डिफरेंशियल होता है वो क्या होता है 2t की पावर 2 माइनस 1 यानी कि 1, तो ये क्या रह गया 2t प्लस 5 है कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशियल होता है 0, तो ये हो गया 4t। तो हमारा एक्सेलरेशन कितना आ गया, एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई है 4t। अब हमें क्या करना है, एक्सेलरेशन 4t कैलकुलेट कर दिया, क्वेश्चन में दिया है एट एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू 4 सेकेंड्स, तो हम क्या करें, एट t इज इक्वल टू 4 सेकेंड acceleration will be 4 into 4 is equal to 16 meter per second square is the answer. So in this way we are solving these questions by the calculus method. I will give you the sheet to solve such questions and then send me the clip of your questions. Now coming to the next question, and the question is the acceleration of the particle in meter per second square is given by this. Acceleration of the particle is given where time t is in seconds. The particle start with a velocity of 2 meter per second at t is equal to 0. 2 meter per second t is equal to 0, यानी पार्टिकल 2 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से अपना मोशन स्टार्ट करता है। देन फाइंड द वेलोसिटी एट द एंड ऑफ 2 सेकंड, तो 2 सेकंड के बाद फ्रॉम द स्टार्ट यानी t is equal to 0 से t is equal to 2 के बाद व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। तो यहां पर क्या गिवन है, हमें गिवन है एक्सेलरेशन 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 2। ओके, तो एक्सेलरेशन गिवन है का मतलब हुआ कि वी आर हैविंग dv डिवाइडेड बाय dt। डेफिनेशन एक्सेलरेशन की है dv बाय dt, इसका मतलब हमें dv बाय dt गिवन है 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 2। अब क्या करें, हमें यहां से v कैलकुलेट करना है, तो इंटीग्रेशन टेक्निक यहां पर यूज करनी पड़ेगी। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन dv इज इक्वल टू 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 2 इनटू dt। ओके, नाउ टेकिंग इंटीग्रल ऑन बोथ द साइड्स, टेकिंग इंटीग्रल ऑन बोथ द साइड्स, तो इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा, यहां पर कोई टर्म नहीं है, इसका मतलब v होगा। ओके, यहां पर 3 रिमेन सेम, t स्क्वायर का इंटीग्रल जो होगा t रेज़ टू द पावर 3 by 3 प्लस 2
टी का इंटीग्रल हो जाएगा टी स्क्वायर बाई 2 प्लस 2 इंटू टी। ओके, और मैंने बताया था कि इसमें क्या आता है, एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी भी आता है। थोड़ा सिंप्लीफाई कर दूं, 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू टी क्यू प्लस टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस सी। ओके, अब ये जो कंडीशन दी गई है कि ऑब्जेक्ट स्टार्ट इट्स मोशन एट t इज इक्वल टू 0 with velocity 2 meter per second. By putting these values in this expression, we can calculate the proportionality constant C. So, as v is equal to 2 meter per second at t is equal to 0, which implies C is equal to 2 meter per second. क्योंकि यहाँ पर हमने 2 पुट कर दिया, ये सब 0 हो गए, तो C की वैल्यू लिख देंगे 2. It means the expression for the velocity will be t cube प्लस टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस सी प्लस सी इज 2. ये हमारा वेलोसिटी का फार्मूला अब बन गया. क्वेश्चन में कहा है फाइंड द वेलोसिटी आफ्टर 2 सेकेंड्स. तो एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स वेलोसिटी में भी रिटन एज 2 क्यूब 2 स्क्वायर 2 इंटू 2 प्लस 2. तो ये हो गया 8 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 2. तो इट इज 18 मीटर पर सेकेंड. फिर दोबारा समझ लो, अगर एक्सेलरेशन दिया है, वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है तो हमें इंटीग्रेट करना होता है, और वेलोसिटी दी होती है हमें डिफरेंशियल करना होता है. तो क्या करेंगे फिर हम, वेलोसिटी गिवन है, एक्सेलरेशन निकालना है तो डिफरेंशिएट करेंगे. तो यहाँ पर एक्सेलरेशन गिवन है, एक्सेलरेशन का मतलब dv बाई dt गिवन है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट कर दिया, क्योंकि dv से v कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, d हटाना पड़ेगा. d कैसे हटेगा, जब हम इसे इंटीग्रेट करेंगे. तो इंटीग्रेट बोथ साइड करा तो यहाँ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ गया. इसके लिए कंडीशन गिवन है 0 पर वेलोसिटी 2, इससे c निकल गया. c को फाइंड करने के बाद हमारा ये वाला एक्सप्रेशन आ गया वेलोसिटी का. अब क्वेश्चन में पूछी है वेलोसिटी 2 सेकंड पर, तो t की वैल्यू 2 पुट कर दी और हमारा आंसर आ गया 18 मीटर पर सेकंड. अब इस क्वेश्चन पे आते हैं. इस क्वेश्चन में दिया है द डिस्टेंस x ऑफ, ये आईआईटी में क्वेश्चन पूछा गया है, द डिस्टेंस x ऑफ अ पार्टिकल मूविंग in one direct dimension under the action of the constant force is related to the time t by the equation. Equation क्या given है, t is equal to under root x plus 3, where x is in meters, t is in seconds. Find the displacement of the particle at the velocity is 0. यानी हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है डिस्प्लेसमेंट x फाइंड करना है. कब, at v0, जब v0 हो तो, v0 हो तो पहले क्या करें, पहले v कैलकुलेट करें. v कैसे कैलकुलेट करेंगे, इक्वेशन को x के लिए सोल्व करें. तो अंडर रूट x इज इक्वल टू t माइनस 3. दिस इक्वेशन में भी रिटन एज अंडर रूट x इज इक्वल टू t माइनस 3. स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू t माइनस 3 का स्क्वायर. यानी जब यहाँ बोथ साइड का स्क्वायर कर देंगे तो एक्सप्रेशन हो जाएगा. अब हमें इसको डिफरेंशिएट करना है v निकालने के लिए. dx डिवाइडेड बाय dt, ये हो जाएगा 2t माइनस 3 और d बाई dt ऑफ t माइनस 3. यही तरीका है इस तरह के क्वेश्चन को डिफरेंशिएट करने का. तो ये आ गया 2t माइनस 3 और दिस विल बी 1 माइनस 0, 1 माइनस 0, तो ये 2t माइनस 6. ये आ गया एक्सप्रेशन फॉर द वेलोसिटी. क्वेश्चन में क्या कहा है, क्वेश्चन में कहा x निकालो. कब, कंडीशन दे रखी है v0, तो एट v इज इक्वल टू 0, v इज इक्वल टू 0 यहां रख दीजिएगा. 0 इज इक्वल टू 2t माइनस 6. We can calculate the value of t from this expression. तो ये हो गया 6/2 यानी कि 3 सेकेंड्स. t आ गया 3 सेकेंड्स. अब x निकालना है, x का एक्सप्रेशन ये है, इसे इक्वेशन 1 मान लो और t की ये वैल्यू इसमें पुट कर दो तो हमें x मिल जाएगा. x ही निकालना चाहते हैं तो पुट इन 1. x इज इक्वल टू हो जाएगा t माइनस 3 का स्क्वायर, मतलब t की जगह क्या रखना है, 3 माइनस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0. आंसर. Okay students, this is completed.